This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for second part of quicksort. So in earlier class, that was regarding quicksort part 1, we have already studied the stepwise illustration of partition procedure. And as far as today's class is concerned, in part 2 of quicksort, we have to go for stepwise illustration of the entire quicksort. So we have already studied that quicksort is a partition extend sort, and this particular sorting technique was given by Tony Ore in 1959. Then we also studied that quicksort is a comparison sort, and this particular sorting technique is not a stable sort. We already studied the working principle of a quicksort, and working principle was that in quicksort we are using divide and conquer mechanism. So whereas in a divide phase, we have to go for recursively division of a given problem into various subproblems, and this division procedure will be continued unless and until there will be the problem size or a subproblem size of a single input. And in conquer phase, simply here we have to go for collection of all pivots. Now, what is the algorithm for a quicksort? तो quicksort का algorithm है फंक्शन कॉल है क्विकसॉर्ट APR, ये मीन्स हमारा गिवन अरे, PN है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, RN है हमारा लास्ट इंडेक्स। और क्विकसॉर्ट में सबसे पहले तो डिवाइड फेज हमें परफॉर्म करना होता है, और डिवाइड फेज है ये P इज लेस देन R, यानी अगर हमारे एरे में मोर देन वन एलिमेंट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट अगर है तो देन वी हैव टू गो फॉर डिवीजन ऑफ अरे। तो हमारा अरे कहाँ से डिवाइड होगा, that is computed by a partition procedure. That's why we have to apply function called partition APR, और पार्टीशन APR ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा अरे ऑन द बेसिस ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ पाइवट दो पर्टिकुलर लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब लेफ्ट सब अरे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो लेफ्ट सब अरे विल बी फ्रॉम P to Q minus of 1 and right sub array will be from Q plus 1 to R, and on this both left sub array and right sub array we have to call recursively quicksort once again. Getting it? तो here important mechanism is how to compute Q, क्योंकि Q क्या है, Q is the ultimate position of our pivot. एक्चुअली हमारा जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर पाइवट करके कंसीडर करते हैं तो वो पाइवट एलिमेंट का अल्टीमेट पोजीशन इन अ सॉर्टेड अरे क्या रहेगा, दैट इज कंप्यूटेड बाय दिस पार्टीशन प्रोसीजर। अब पार्टीशन प्रोसीजर का अगर सूडोकोड अगर हमें देखना है तो पार्टीशन प्रोसीजर का सूडोकोड इस तरह से था, पार्टीशन APR x will be equals to E of R, means we have to select last element of array as a pivot, I will be equals to P minus 1। तो ये था हमारे पार्टीशन प्रोसीजर का स्टेप पॉइंट जहां पे हमें पाइवट और आई पॉइंटर सेट करना था। देन सेकंड स्टेप जो था वो था हमारा इटरेशन, एंड इटरेशन वाली फेज में हमें पार्टीशन प्रोसीजर का इटरेशन अप्लाई करना था फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ आवर अरे। तो फर्स्ट एलिमेंट वाज आइडेंटिफाइड बाय P एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट वाज आइडेंटिफाइड बाय R minus 1। और पूरी इटरेशन में आपको एक ही काम करना था, आपका जो करंट एलिमेंट है दैट इज ये ऑब्जे, क्या ये ऑब्जे आपके पाइवट से कम है क्या, तो if ये ऑब्जे इज अ स्मॉलर वैल्यू देन दैट ऑफ पाइवट, देन व्हाट वी हैव टू डू, simply we have to increment I pointer by 1, means I will be equals to I plus 1, and after that we have to go for exchange of E of I with E of j, and at the end what we have to do, at the end we have to exchange E of I plus 1 and A of R, that is what the pivot, and ultimately we have to return the value I plus 1। So this was the pseudocode of a partition procedure। और अगर पार्टीशन एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है ये अगर आपको समझना है तो आपको हमारा अर्लियर वाला वीडियो रेफर करना पड़ेगा। तो इससे अर्लियर वीडियो में हमने स्टेपवाइज इलिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीशन प्रोसीजर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पे आपको वन बाय वन हर एक स्टेप में पार्टीशन प्रोसीजर कैसे वर्क करता है इसको हमने ग्राफिकली भी समझाया है। तो नाउ in today's class we have to go for stepwise execution or stepwise illustration of a quicksort, और stepwise illustration of quicksort समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है। प्रॉब्लम इज illustrate stepwise execution of quicksort on the following array है। हमने यहाँ पे एक array लिया है array A, और array A पे quicksort हमें implement करना है। array A is 13, 19, 7, 5, 12 and 9, और इस पर्टिकुलर array के ऊपर अभी हमें quicksort implement करना है। जब कभी भी हमें क्विकसॉर्ट इंप्लीमेंट करना होगा तो एट दैट टाइम फर्स्ट वी हैव टू राइट द एल्गोरिथम ऑफ क्विकसॉर्ट,
और क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम हमने अभी देखा था, क्विक सॉर्ट APR, if P is less than R, then we have to compute Q. Q will be equals to partition APR. Then we have to once again 2 times call recursively quick sort. Quick sort A P Q minus 1 and quick sort A Q plus 1 to R. So this is what a pseudocode of a quick sort. तो अभी इसी pseudocode को भी हम अप्लाई करेंगे हमारे गिवन अरे के ऊपर। तो क्विक सॉर्ट के लिए सबसे पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम APR, यानी मेरा अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और अरे का लास्ट इंडेक्स। तो अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स, यानी हमें जो अरे दिया हुआ है उस अरे को पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, और पूरा का पूरा अरे अगर हम लेते हैं तो अगर हम फंक्शन कॉल परफॉर्म करेंगे तो दैट पर्टिकुलर फंक्शन कॉल विल बी क्विक सॉर्ट A16। क्यों? क्योंकि हमारा अरे जो दिया हुआ है दैट अरे इज फ्रॉम P इज इक्वल्स टू 1 to 6। So now here we have to go for stepwise execution of quick sort। और stepwise execution में हमने बोला था कि क्विक सॉर्ट में पर्टिकुलरली डिवाइड एंड कॉन्कर ऐसे मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट करते हैं हर एक लेवल पे, इसलिए सबसे पहले हम लेवल 1 के लिए स्टडी करेंगे और लेवल 1 में डिवाइड कैसे इंप्लीमेंट होगा और लेवल 1 में कॉन्कर कैसे इंप्लीमेंट होगा, दैट वी हैव टू स्टडी। इससे अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि मर्ज सॉर्ट के मुकाबले क्विक सॉर्ट थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले तो हर एक लेवल में डिवाइड पहले होता था, और जब लास्ट लेवल पे डिवाइड फेज खत्म हो जाती उसके बाद बॉटम अप फैशन में कॉन्कर स्टार्ट होता था, यानी लेवल 1 डिवाइड, लेवल 2 डिवाइड, लेवल 3 डिवाइड होने के बाद में फिर कॉन्कर एट लेवल 3, देन कॉन्कर एट लेवल 2, देन कॉन्कर एट लेवल 1। इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म मर्ज सॉर्ट में इंप्लीमेंट होता था। जबकि क्विक सॉर्ट की अगर बात करेंगे तो क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, एक ही लेवल में डिवाइड एंड देन कॉन्कर, देन दूसरी लेवल में डिवाइड एंड देन कॉन्कर, इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो देयरफॉर इफ वी हैव टू गो फॉर क्विक सॉर्ट तो लेवल वाइज हम डिवाइड कैसे हो रहा है और कॉन्कर कैसे हो रहा है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एट लेवल 1, और लेवल 1 में पहला फेज हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट अ डिवाइड फेज। तो लेवल 1 में सबसे पहला फंक्शन कॉल स्टडी करना दैट इज व्हाट अ क्विक सॉर्ट A16। तो हमारा अरे जो दिया है दैट इज फ्रॉम 13 to 9, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और लास्ट इंडेक्स है 6, इसलिए पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा दैट विल बी फॉर एंटायर अरे दैट इज क्विक सॉर्ट A16। ये मींस P एंड R मींस 6। गेटिंग इट? तो अभी क्विक सॉर्ट का सूडो कोड जब हम अप्लाई करेंगे तो क्विक सॉर्ट का सूडो कोड क्या है, if P is less than R then Q will be equals to partition APR quick sort A P Q minus 1 quick sort A Q plus 1 R। अब ये सूडो कोड को हम रन करेंगे। Here we have to go for at level 1 that is phase 1 divide। तो लेवल 1 पे सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिवाइड फेज। तो हमारा अरे है 13 19 7 5 12 9, और इस पूरी अरे के ऊपर पहला फंक्शन कॉल जो बनेगा दैट विल बी क्विक सॉर्ट 1 to 6। तो क्विक सॉर्ट 1 to 6 जब बनेगा, 1 to 6 क्यों? क्योंकि P to R, P कितना है 1 और R कितना है 6, इसलिए पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा दैट विल बी क्विक सॉर्ट A16। अब क्विक सॉर्ट A16 में हमें चेक करना है if 1 is less than 6 that is if P is less than R we have to check for this condition। अब P is less than R ये इंडिकेट क्या करेगा, तो P is less than R ये इंडिकेट करेगा हमारे अरे में सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है। तो P less than R तब तक के ट्रू रहेगा जब तक आपके अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स है, और ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स तब रहेगी जब आपके अरे में सिंगल एलिमेंट है। तो जब जब ट्रू होता है तब आपको क्यू कैलकुलेट करना और 2 बार क्विक सॉर्ट को कॉल करना। तो जब मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे तो वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्यू एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर 2 टाइम्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्विक सॉर्ट फॉर अ गिवन अरे। तो सेम मैकेनिज्म हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1 is less than 6 कंडीशन है ट्रू, और ट्रू है तो हमें क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्यू क्या होगा, क्यू विल बी इक्वल टू पार्टीशन APR मींस पार्टीशन A16। और पार्टीशन A16 जब हम परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको पार्टीशन प्रोसीजर का सूडो कोड अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई पार्टीशन A16 का आउटपुट क्या आएगा ये अगर आपको समझना है तो आपको पार्टीशन प्रोसीजर का पूरा कोड कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए, और इस चीज को समझने के लिए आपको अर्लियर वाला वीडियो रेफर करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो पार्टीशन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या रिटर्न करता है, पार्टीशन प्रोसीजर एग्जैक्टली रिटर्न करता है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एज ए पाइवट कंसीडर करते हैं वो पाइवट का इंडेक्स को रिटर्न करता है। तो इस पूरे अरे में हमारा पाइवट कौन है, लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट वाला एलिमेंट कौन है, 9। तो 9 को
अगर हम अरे को सॉर्ट करेंगे तो अरे सॉर्ट करने के बाद 9 का पोजीशन कौन सा रहेगा इन ए सॉर्टेड अरे, दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी रिटन बाय पार्टीशन प्रोसीजर। तो इस अरे को कहीं ना कहीं अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, यानी 9 की करेक्ट पोजीशन क्या रहेगी 3। देयरफॉर क्यू जो क्यू की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी 3। अब तो यहाँ पे हम सारी चीजें देख सकते हैं, अगर क्यू की वैल्यू 3 रहेगा ये हमने कैलकुलेट किया है, बट एग्जैक्टली ये चीज पार्टीशन प्रोसीजर कैलकुलेट करके बताता है। वो कैसे करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम पार्टीशन A16 से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो पार्टीशन A16 प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट जो मिलेगा दैट विल बी क्यू विल बी इक्वल टू 3। और क्यू इक्वल टू 3 आउटपुट मिलने के बाद फिर हमारा अरे दो पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला पार्ट रहेगा ये p टू q माइनस 1। अब ये p कितना है 1, दैट्स व्हाई ये 1 2 दिस विल बी द फर्स्ट लेफ्ट सब अरे, और राइट सब अरे रहेगा फ्रॉम ये q प्लस 1 टू r, यानी ये q प्लस 1 मींस 3 प्लस 1 4 एंड r मींस 6, दैट्स व्हाई क्विक सॉर्ट ये 4 6। तो दिस विल बी द डिवीजन फेज एट लेवल 1। तो जनरली फेज 1 में डिवाइड जब परफॉर्म कर रहे हैं तो डिवाइड एग्जैक्टली कहां से हो रहा है, ये कौन कंप्यूट करके दे रहा है हमें, ये कंप्यूट करा के दे रहा है हमें पार्टीशन प्रोसीजर। और पार्टीशन प्रोसीजर जब ये कंप्यूट कराएगा तो 9 यानी हमारा जो पाइवोट है ये पाइवोट डिसाइड करेगा कि हमारा अरे किस हिसाब से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 के लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि लेस देन 9 है, और 9 के राइट हैंड साइड में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ग्रेटर देन 9 है। तो एज फार एज आवर अरे इज कंसर्न 13, 19 एंड 12 these three elements are greater than 9, इसलिए वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, जबकि 7 एंड 5 में दो एलिमेंट छोटे इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। अब वो लेफ्ट हैंड साइड में 7 और 5 का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहेगा और 13, 19 और 12 का एग्जैक्ट ऑर्डर राइट हैंड साइड के सब अरे में क्या रहेगा दैट वी डोंट नो। इसलिए पार्टीशन प्रोसीजर को ही रन कराना पड़ेगा, और पार्टीशन प्रोसीजर जब हम रन कराएंगे तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि what will be the order of element in left hand side array and what will be the order of element in right hand side array। तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्टीशन A16 से प्रोसीजर रन कराएंगे तब एग्जैक्टली अरे कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर एलिमेंट्स क्या रहेंगे, राइट हैंड साइड में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ये समझने के लिए अभी हम पार्टीशन A16 प्रोसीजर रन करा लेते हैं। तो पार्टीशन प्रोसीजर में स्टेप 1 होता है कि वी हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ i एंड पाइवोट। तो पाइवोट कौन रहेगा, मेरी गिवन अरे में लास्ट एलिमेंट को हम पाइवोट इंडिकेट करने वाले हैं, तो लास्ट एलिमेंट क्या है 9, देयरफॉर 9 विल बी द पाइवोट दैट इज व्हाट इज x। और सेकंड i वैल्यू हमें सेट करना है, और i वैल्यू जो हमेशा होती है दैट विल बी इक्वल टू i इज इक्वल टू p माइनस 1, दैट्स व्हाई p की वैल्यू 1 होने की वजह से i की वैल्यू रहेगी 0। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का बबल दिख रहा होगा, दिस इंडिकेट्स i पॉइंटर जो कि 0 पे है, और x is equals to e of r यानी मेरे अरे का लास्ट एलिमेंट दैट इज व्हाट द पाइवोट। दिस इज व्हाट द स्टेप 1 ऑफ पार्टीशन प्रोसीजर। Then in step 2 we have to go for the iterations। अब हर इटरेशन में हमें क्या करना है, तो हर इटरेशन में हमें ये पर्टिकुलर लूप लगाना है फॉर j इज इक्वल्स टू p टू r माइनस 1, यानी j की वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट करना है और r माइनस 1 तक के यानी सेकंड लास्ट एलिमेंट तक के आपको चलना है। एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर करंट एलिमेंट विद द पाइवोट दैट इज a of j लेस देन इक्वल्स टू x है, यानी ये हमें चेक करना है। और ये कंडीशन अगर आपका ट्रू आ रहा होगा तो आपको i पॉइंटर को x से बढ़ाना है और a of i और a of j को एक्सचेंज करना है। अब इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने j पॉइंटर 1 से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि अभी हम इटरेशन 1 देख रहे हैं फॉर j इक्वल्स टू 1, तो j पॉइंटर हमने 1 पे रखा, i पॉइंटर हमारा 0 पे है, तो e of j यानी कितना हो जाएगा 13 और x यानी कितना हो जाएगा 9। तो आपको सिंपली चेक करना है करंट वाली वैल्यू पाइवोट के मुकाबले छोटी है क्या, तो वेदर 13 इज लेस देन 9, नो, और 13 इज लेस देन 9 नहीं है, इसलिए आपको ना ही तो कोई i को इंक्रीमेंट करने की जरूरत है एंड देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ e of i एंड e of j, इसलिए कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीमेंट द j पॉइंटर, और j पॉइंटर अभी 1 से 2 पे जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा j पॉइंटर जो है ये 2 पे हमने ला के रखा है, गेटिंग इट। तो दिस इज अबाउट इटरेशन 1। देन वी हैव टू गो टू इटरेशन 2। इटरेशन 2 में हमारा j पॉइंटर 2 पे रहेगा, तो e of j कितना हो जाएगा 19। 19 को कंपेयर करना है पाइवोट के साथ, तो 19 इज लेस देन 9, वंस अगेन नो, फॉल्स रहेगा कंडीशन, तो नो नीड टू इंक्रीमेंट i एंड नो नीड टू एक्सचेंज e of i एंड e of j।
तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आई पॉइंटर को जहाँ के वहां रखना पड़ेगा, जे पॉइंटर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जे पॉइंटर को हमने 1 से बढ़ाया तो कितने पे आ गया, 3 पे, और आई पॉइंटर आपका कितने पे, 0 पे। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट इटरेशन, दैट इज फॉर जे इज इक्वल टू 3। तो अभी जे इज इक्वल टू 3 के लिए आ गए, जे इज इक्वल टू 3 के लिए आने वक्त हमारा जे पॉइंटर 3 पे है, आई पॉइंटर अभी भी 0 पे है। अब ये आप जे को और एक्स को कंपेयर करो, तो ये आप जे यानी कितना है, 7, तो इधर 7 इज लेस देन 9, यहाँ पे कंडीशन आपका ट्रू आ रहा है। और कंडीशन जब ट्रू रहता है तब हमें सबसे पहले तो आई को बढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद ई ऑफ आई और ई ऑफ जे को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीमेंट आई। तो आई अगर बढ़ाएंगे तो आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, दैट इज 0 + 1 विल बी इक्वल्स टू 1। इसलिए आपको आई पॉइंटर 0 से 1 पे, तो इनिशियली आई पॉइंटर वाज एट 0 एंड नाउ इट इज एट 1, गेटिंग इट। तो आई पॉइंटर को हमने x से बढ़ाया, और उसके बाद ई ऑफ आई को ये आप जे के साथ एक्सचेंज किया। अब ऑफ आई अगर आप देखोगे तो ई ऑफ आई रहेगा 13, और ई ऑफ जे कितना रहेगा, 7। तो 13 एंड 7 विल गेट एक्सचेंज। इसलिए अगर आप केयरफुली देखोगे तो फॉर जे इज इक्वल टू 3, ये आप 1 पे आपका आ जाएगा 7, और ये आप 3 पे चले जाएगा 13, वही चीज हमने यहाँ पे की है। तो ये आप 1 पे 7 आ गया, और ये आप 3 पे आपका 13 चले गया, गेटिंग इट। So that's why e of 1 will be equals to 7 and e of 3 will be equals to 13. And after that, what we have to do? We have to increment j by j is equals to 4. Why? क्योंकि we have to go to next iteration. इसलिए हमने j पॉइंटर को यहाँ पे 4 पे लाके रखा है। तो हमने थर्ड इटरेशन में क्या किया, i की वैल्यू 1 से बढ़ाई, e of i को e of j के साथ एक्सचेंज किया, और फिर अभी i पॉइंटर को 1 से बढ़ा दिया। तो दिस वाज फॉर इटरेशन 3। नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 4। अब इटरेशन 4 के लिए जब जाएंगे तो इटरेशन 4 के लिए जे पॉइंटर जो रहेगा वो रहेगा 4 पे, यानी करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू इज लेस देन पाइवट, क्योंकि हम लेस देन कंडीशन चेक करते हैं। तो करंट वैल्यू इज लेस देन पाइवट, यस। तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है हमारी ट्रू, और जब ये अब जे इज लेस देन पाइवट ऐसा कंडीशन रहेगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वंस अगेन वी हैव टू इंक्रीमेंट आई बाय 1। अब आई को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, तो आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई जो 1 पे है वो अभी कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे, और ये ऑफ आई और ये ऑफ जे को एक्सचेंज करेंगे तो 5 और 19 बोथ विल गेट एक्सचेंज। इसलिए 5 आ जाएगा 2 पे और 19 आ जाएगा 4 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पे 5 आ गया और 19 पे कौन आ गया, 4 आ गया। एंड फॉर नेक्स्ट इटरेशन हम जे की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, इसलिए हमारा जे जो 4 पे था वो भी कितने पे चले गया, 12, गेटिंग इट। देन नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर इटरेशन 5। तो इटरेशन 5 पे जब हम आएंगे तो इटरेशन 5 पे हमारा जे जो रहेगा वो 5 पे रहेगा। तो ये ऑफ जे कितना है, 12, और अभी 12 को कंपेयर करना है 9 के साथ, वेदर 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन हमारी फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स रहेंगी तो नो नीड टू इंक्रीमेंट आई एंड देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ ई ऑफ आई एंड ई ऑफ जे। तो ओनली क्या हो जाएगा, आपका आई पॉइंटर जो 2 पे था वो 2 पे ही रहेगा, और जे इज इक्वल्स टू जो 5 पे था वो कहाँ पे चले जाएगा, 6 पे। तो जे इज इक्वल्स टू जो 5 पे था वो अभी आ गया आपका 6 पे। बट इट वाज अवर लास्ट इटरेशन, क्यों, क्योंकि हमें आई की वैल्यू, हमें जे की वैल्यू पी इज इक्वल्स जे की वैल्यू 1 से लेके r-1 तक की परफॉर्म करना था। तो r-1 यानी कितना था, 5। तो दैट्स व्हाई इट वाज द लास्ट इटरेशन। और लास्ट इटरेशन होने के बाद जब हम पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो पार्टीशन की थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है एक्सचेंज पाइवट विद ई ऑफ आई प्लस 1। तो ये ऑफ आई पॉइंटर कहाँ पे आपका 2 पे है, तो आई ये ऑफ आई प्लस 1 यानी क्या रहेगा, ये ऑफ 3, और ये ऑफ 3 क्या रहेगा, 13। तो 13 विल गेट एक्सचेंज विद पाइवट, यानी किसके साथ, 9 के साथ एक्सचेंज होना चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये ऑफ आई प्लस 1 यानी ये ऑफ 3, और ये ऑफ आर यानी आपका पाइवट रहेगा, दैट विल बी 9, बोथ विल गेट एक्सचेंज विद इटसेल्फ। इसलिए आप 13 की जगह 9 को लेके आएंगे और 9 की जगह 13 को लेके जाएंगे, तो आपका अरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, 3। तो हमने पहले मैन्युअली कैलकुलेट किया था कि 9 का सॉर्टेड अरे में पोजीशन कौन सा रहेगा, 3। तो दैट्स व्हाई जो भी वैल्यू पार्टीशन प्रोसीजर रिटर्न करने वाला है वो वैल्यू रहेगा 3। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो वाली वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 3। तो जब कभी भी हम पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हमारा पाइवट जो है वो थर्ड लोकेशन पे चले जाएगा, और हमारा अरे जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। आपको एक ग्रीन पोर्शन में अरे दिख रहा होगा और एक पर्पल पोर्शन में अरे दिख रहा होगा।
तो ग्रीन पोर्शन जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज व्हाट अ लेफ्ट सब अरे, और पर्पल कलर में जो इंडिकेट हो रहा है दैट इज व्हाट अ राइट सब अरे, और पाइवोट जो है वो हमारे करेक्ट पोजीशन पे चला गया। गेटिंग इट? तो दिस वाज द पार्टीशन प्रोसीजर। एंड नाउ ओवरऑल अगर हम पार्टीशन A16 इस प्रोसीजर को अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमारे अरे ए पे जब हम पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो इस पार्टीशन प्रोसीजर में लास्ट एलिमेंट को अगर हम पाइवोट कंसीडर करते हैं तो पाइवोट को उसके करेक्ट ठिकाने पे हमने पहुंचा दिया, दैट इज व्हाट q इज इक्वल्स टू 3। and now our array is divided into two parts from p to q minus 1 and q plus 1 to r। तो पार्टीशन का काम यही था, और मैंने बोला भी था कि पार्टीशन जो है ये दोनों काम कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है और कॉन्कर भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पाइवोट यानी जो 9 था उस 9 को उसके करेक्ट पोजीशन पे हम लेके आ रहे, दिस इज व्हाट अ कॉन्कर फेच, और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमने अरे को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज व्हाट अ कॉन्कर फेच। तो नाउ हमारा जो एक्चुअल था पार्टीशन A16 प्रोसीजर, उसमें हमने फंक्शन कॉल जो परफॉर्म किया था वो था पार्टीशन APR दैट इज पार्टीशन A16, और पार्टीशन A16 में हमने दोनों काम कर दिए। सबसे पहले तो हमारा जो पाइवोट था 9 उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके आ गया, उसका करेक्ट इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया। साथ साथ हमने दो काम किए, हमारे अरे को हमने लेफ्ट सब पार्ट में और राइट सब पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। गेटिंग इट? तो नाउ वंस अगेन वी हैव टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल फ्लो, जहां से हम एक्चुअली अभी सॉल्व जो कर रहे थे वो था हमारा स्टेप वाइज इलिस्ट्रेशन ऑफ क्विक सॉर्ट। और कहीं ना कहीं स्टेप वाइज इलिस्ट्रेशन ऑफ क्विक सॉर्ट में अभी हमने स्टडी कर लिया कि पार्टीशन प्रोसीजर हमारा q इज इक्वल टू 3 कैसे रिटर्न करेगा। तो एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं हमारा क्विक सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट में हम लेवल 1 पे फेज 1 स्टडी कर रहे थे जहां पे हम डिवाइड कैसे परफॉर्म करना वो स्टडी किया। तो डिवाइड कैसे परफॉर्म करना उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास पूरा अरे दिया हुआ है तो पूरे अरे में क्विक सॉर्ट A16 ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, और ये फंक्शन अप्लाई करते वक्त चेक करेंगे क्या हमारे अरे में सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है। और अगर हमारे अरे में मल्टीपल एलिमेंट है तो p लेस देन r ये कंडीशन हमेशा ट्रू आएगी, और ट्रू अगर आएगा तो हमें पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करना है। और जब कभी भी हम पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करते हो जिस अरे के ऊपर हम पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई करने वाले उसके लास्ट एलिमेंट को हम पाइवोट कंसीडर करेंगे, दैट इज व्हाट आवर अजम्पशन। और उस अजम्पशन के बेसिस पे पाइवोट की करेक्ट पोजीशन कौन सी रहेगी, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी रिटन बाय द पार्टीशन प्रोसीजर, जिसको हम बोलेंगे i+1 दैट इज नथिंग बट q। तो यहाँ पे q की वैल्यू हमको 3 मिल गई, और अभी हमारा अरे जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये p टू q-1 और दूसरा q+1 टू r। तो यही चीजें हमको यहाँ पे दिख रही होगी। ग्राफिकली अगर हमें देखना है तो भी क्विक सॉर्ट A16 में हमने चेक किया 1 लेस देन 6 से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए पार्टीशन हमने अप्लाई किया, और पार्टीशन अप्लाई करने के बाद q इज इक्वल टू 3 मिल गया। q इज इक्वल टू 3 पे एक्चुअली हमारा पाइवोट जो है वो पहुंच गया, और हमारा अरे जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट दैट इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन कलर, और सेकंड पार्ट दैट इज इंडिकेटेड बाय पर्पल कलर। तो दिस इज व्हाट माय राइट सब अरे एंड दिस इज व्हाट माय लेफ्ट सब अरे। तो लेफ्ट सब अरे में सारे एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जो कि लेस देन पाइवोट रहेंगे, और राइट सब अरे में वो वाले एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन पाइवोट है। और अभी हमें ऑर्डर में मिल गया कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो नंबर्स रहेंगे। तो पहले 7 आएगा, बाद में 5 आएगा। पहले हमें नहीं पता था कौन आएगा, लेकिन जब हमने पार्टीशन प्रोसीजर अप्लाई किया तो नाउ वी गॉट एग्जैक्टली कि पहले कौन आएगा 7, बाद में कौन आएगा 5। सिमिलरली राइट सब अरे में पहले कौन आएगा तो 19 देन 12 देन 13। तो दिस इज व्हाट लेवल 1 पार्टीशन प्रोसीजर जिसमें हमने डिवीजन को स्टडी किया। नाउ वी हैव टू गो टू हाउ टू अप्लाई कॉन्कर इन लेवल 1। कॉन्कर में एक्चुअली क्या है कि जब हमारा पर्टिकुलर अरे ऐसा था और पार्टी से जब हमने कॉल किया तो पार्टीशन कॉल करते वक्त हमें पता चला कि क्या रिटर्न किया था हमने i+1, और i+1 की वैल्यू क्या थी 3, और i+1 की वैल्यू 3 थी। इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर पाइवट को उसके सही लोकेशन पे जाके सेव कर रहे हैं। सही लोकेशन क्या है 9 will be stored at position 3। तो दिस इज नथिंग बट अ कॉन्कर मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि 9 को करेक्ट तरीके से हमने सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करके उसको उसके फाइनल पोजीशन पे हमने रख दिया। दिस इज व्हाट अ कॉन्कर फेच। इसलिए हमने बोला था कि क्विक सॉर्ट में
लेवल 1 पे ही डिवाइड होता है और लेवल 1 पे ही कॉन्कर होता है, और ये दोनों काम कॉन्कर प्रोसीजर है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये दोनों काम हमारा पार्टीशन प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इसलिए पार्टीशन प्रोसीजर को केयरफुली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पार्टीशन प्रोसीजर एग्जैक्टली किस तरीके से हमारे अरे को डिवाइड करेगा और किस तरीके से कॉन्कर करेगा। तो लेवल 1 तक के हमने अभी स्टडी कर लिया। अब लेवल 1 पे हमारे पास क्या है, तो लेवल 1 में हमने 9 को कॉन्कर कर दिया है, यानी 9 का काम फिनिश। और अभी हमारा अरे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे। तो अभी हम लेफ्ट सब अरे पे क्विक सॉर्ट को एक बार रिकर्सिवली कॉल करेंगे और राइट सब अरे पे क्विक सॉर्ट को एक बार रिकर्सिवली कॉल करेंगे। गेटिंग इट? तो नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 2। तो लेवल 2 में हमारे पास क्या है, तो लेवल 2 में है एक लेफ्ट सब अरे और दूसरा है राइट सब अरे। तो लेफ्ट सब अरे के लिए हमें एक बार क्विक सॉर्ट कॉल करना है। लेफ्ट सब अरे के लिए जब हम क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे तो दैट क्विक सॉर्ट विल बी फ्रॉम 1 to 2, देयरफॉर हियर वी हैव क्विक सॉर्ट A12। और राइट सब अरे के लिए जब हम कॉल करेंगे तो इट विल बी क्विक सॉर्ट A46। तो नाउ हमारे पास जो एक सिंगल प्रॉब्लम था, उस सिंगल प्रॉब्लम को हमने दो अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट वन सब प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट अनदर सब प्रॉब्लम। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इंडिविजुअली ये दोनों सब प्रॉब्लम को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले सब प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। तो क्विक सॉर्ट A12 ये सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो क्विक सॉर्ट A12 में हमें चेक करना है P इज लेस देन R, P कितना है 1 और R कितना है 2, यानी उस अरे पर्टिकुलर अरे का लास्ट एलिमेंट यानी कितना है 2। तो ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। तो सिंपली चेक करना आपके अरे में सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है। तो ये वी हैव मल्टीपल एलिमेंट, और जब जब मल्टीपल एलिमेंट रहेगा तो ये कंडीशन कैसी आएगी, ट्रू आएगी। और ये कंडीशन जब ट्रू आएगा तो व्हाट वी हैव टू डू, एक बार पार्टीशन कॉल करना और दो बार क्विक सॉर्ट कॉल करना। इसलिए हमें पहले पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करना पड़ेगा। तो पार्टीशन जो कॉल कर रहे हैं दैट पार्टीशन विल बी पार्टीशन A12। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज व्हाट आवर पार्टीशन प्रोसीजर, पार्टीशन A12। और पार्टीशन A12 जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर अरे का लास्ट एलिमेंट कौन सा है 5, तो 5 विल बी द पाइवोट। और 5 अगर पाइवोट रहेगा तो 5 को उसके करेक्ट पोजीशन पे हम पहुंचाएंगे। तो दो ही एलिमेंट है तो 7 और 5 को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा 5 है, तो 5 का इंडेक्स क्या रहेगा 1, इसलिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब मैंने ये मैन्युअली आपको बता दिया है, एक्चुअली आपको ये रन कराना पड़ेगा, तो इसलिए आपको क्विक सॉर्ट का सुडोकोड रन कराना पड़ेगा, पार्टीशन प्रोसीजर को रन करना पड़ेगा। तो पार्टीशन प्रोसीजर का सुडोकोड अगर आप रन कराते तो यू विल गेट q इज इक्वल टू 1 और आपका 5 जो है वो फर्स्ट वाले पोजीशन पे चले जाएगा। एंड नाउ योर अरे विल बी डिवाइडेड इनटू ओनली सिंगल पार्ट। अब यहाँ पे दो पार्ट मिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दो ही एलिमेंट थे, दो में से एक निकल गया तो भी एक ही एलिमेंट बचा, और एक ही एलिमेंट वाला जो अरे बचा है दैट इज व्हाट 7। तो उस पे आपको एक क्विक सॉर्ट कॉल करना पड़ेगा दैट विल बी A2। एंड अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड वाला सब अरे। तो राइट हैंड साइड का जो सब अरे है दैट इज 19, 12 एंड 13। इस पे जो क्विक सॉर्ट कॉल किया दैट विल बी A46। और A46 जब हम कॉल करेंगे तो 4 इज लेस देन 6 है क्या, ये दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और ये कंडीशन अगर ट्रू है यानी मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमारे पास है तो हमें पार्टीशन A46 इसको कॉल करना पड़ेगा। फिर से पाइवोट कौन रहेगा हमारा 13, और पाइवोट 13 यानी लास्ट एलिमेंट अगर है तो फिर 13 का पोजीशन कौन सा रहेगा यहाँ पे 19, 12 एंड 13। तो 13 कहीं ना कहीं मिडल में आएगा, इसका मतलब उसका इंडेक्स क्या रहेगा 5th रहेगा, देयरफॉर इट विल रिटर्न q इक्वल्स टू 5। आपको रन करना पड़ेगा पार्टीशन को, मैंने तो मैन्युअली बोला कि q इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 5, और q इक्वल्स टू 5 जब आएगा तो 13 का इंडेक्स क्या रहेगा 5। तो आपका 13 जो है ये आपका 13 करेक्ट पोजीशन पे चले गया, और लेफ्ट सब अरे में आ जाएगा 12 और राइट सब अरे में आ जाएगा आपका 19। तो दोनों के लिए आपको अलग से दो बार क्विक सॉर्ट कॉल करना पड़ेगा, इसलिए क्विक सॉर्ट A44 एंड क्विक सॉर्ट A66 ऐसे दो फंक्शन कॉल परफॉर्म करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो दिस इज अबाउट द डिवाइड फेज एट लेवल 2। नाउ वी हैव टू स्टडी कॉन्कर एट लेवल 2। तो दिस इज कॉन्कर एट लेवल 2। अब कॉन्कर एट लेवल 2 में क्या हुआ, कॉन्कर एट लेवल 2 में देख सकते हैं कि लेवल 2 में हमारे पास दो सब अरे थे, एक था 7, 5 वाला और दूसरा था 19, 12, 13 वाला। इसमें से पाइवोट कौन था हमारा 5, और 5 का करेक्ट पोजीशन क्या था 1, इसलिए हमने 5 को 1 पे स्टोर किया। और
13 जो था, 13 का करेक्ट पोजीशन क्या मिला हमको 5, इसलिए हमने 13 को 5 पे स्टोर किया। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, अल्टीमेटली हमने 5 को फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर किया और 13 को हमने फिफ्थ लोकेशन पे स्टोर किया। इसका मतलब अभी हमने लेवल 2 में दो एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कराई, दैट इज अबाउट 15 एंड 13, क्योंकि हमारे लेवल 2 में दो पाइवोट थे, लेवल 1 में एक ही पाइवोट था, इसलिए हमने 9 को उसके करेक्ट पोजीशन पे फिक्स किया था। और फेज 2 में 5 और 13, फेज 2 बोल रहा हूँ, लेवल 2 में 5 और 13 ऐसे दो हमारे पास पाइवोट होने की वजह से दोनों पाइवोट को हमने फेज 2 में कॉन्कर किया, लेवल 2 में कॉन्कर किया। एंड नाउ वी हैव टू गो टू डिवीजन एट लेवल 3। तो अभी अगर हम लेवल 3 में अगर जाते हैं तो लेवल 3 में हमारे पास तीन सब अरेज है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए एक सब अरे जो है विच विल कंटेन ओनली 7, और राइट वाले सब पार्ट के लिए अगर जाते हैं तो राइट वाले सब पार्ट में अरे को दो पार्ट में डिवाइड किया था 13 के हिसाब से, एक है ओनली 12 और एक है ओनली 19 वाला। तो ओनली 12 के लिए एक बार क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे और ओनली 19 के लिए एक बार क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। अब हमारे तीनों के तीनों सब प्रॉब्लम्स ऐसे है कि जिनका साइज कैसा है, सिंगल है, और सिंगल साइज होने की वजह से पी लेस देन आर ये कंडीशन कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। और एक कंडीशन अगर फॉल्स रहेगा तो वही पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे पाइवट बनेंगे और उनका इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, गेटिंग इट। एंड दैट्स व्हाई लेवल 3 में अगर हम कॉन्कर की बात करेंगे तो ओनली हर एक एलिमेंट अपना इंडेक्स रिटर्न करने वाला है। दैट्स व्हाई फेज 3 में अगर हम जाते हैं तो 7, 12 एंड 19 ये तीनों के तीनों एलिमेंट अपना इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो दिस इज अबाउट द लेवल 3 कॉन्कर। और अभी फाइनली अगर हम देखेंगे तो 7, 12 एंड 19 ऐसे तीन अरे हैं, तीनों ने अपनी इंडेक्स 2, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली कॉन्कर करा है। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्कर प्रोसीजर एट लेवल 3। एंड नाउ अगर हम देखते हैं कि हमारा डिवाइड प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे वर्क हुआ और कॉन्कर प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे हुआ स्टेप वाइज, तो वो ओवरऑल ऐसे दिखेगा। तो ओवरऑल फेज हम देखते हैं तो ओवरऑल में इनिशियली हमारे पास क्या है, ये अरे ये है, और इस पर्टिकुलर अरे ए में पाइवोट कौन रहेगा, 9। और 9 अगर हमारा पाइवोट था तो 9 के हिसाब से 9 विल बी स्टोर्ड एट द करेक्ट लोकेशन, और उसके हिसाब से हमारा अरे दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9 का करेक्ट लोकेशन 3 था, इसलिए 9 जो है वो बराबर 3 पे जाके स्टोर हो गया, और हमारा अरे जो है वो दो पार्ट में बढ़ गया लेवल 1 में, 7, 5 और 19, 12, 13। अब इसमें लास्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट सब पार्ट में 5, तो दिस विल बी द पाइवोट। और इस पर्टिकुलर पाइवोट को अगर हम स्टोर करेंगे, यानी पार्टीशन जब अप्लाई करेंगे, तो पार्टीशन अप्लाई करने के बाद 5 का करेक्ट पोजीशन कौन सा रहेगा, 1, तो 1 पे जाके स्टोर होगा। जबकि सेकंड पार्ट 19, 12, 13 में 13 का करेक्ट पोजीशन कौन सा रहेगा, 5, तो 5 पे जाके स्टोर होगा। तो आपको ये दिखेगा लेवल 2 में। तो लेवल 2 में आप देख सकते हैं बराबर हमारा 5 जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे जाके सेव हुआ, जबकि 13 जो था वो बराबर फिफ्थ लोकेशन पे जाके सेव हुआ। और अभी क्या है कि अभी अगर हम देखेंगे तो 7, 12 और 19 ये तीनों एलिमेंट्स अभी हमारे पाइवोट रहेंगे, और सिंगल एलिमेंट होने की वजह से खुद का ही इंडेक्स रिटर्न करेंगे, इसलिए 7, 12 और 9 फर्दर डिवाइड होंगे। तो दिस इज व्हाट अ कंप्लीट डिवाइड प्रोसीजर फॉर माय क्विक सॉर्ट। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्कर। तो कॉन्कर में क्या है कि लेवल 1 में 9 हमारा पाइवोट बना था, लेवल 2 में 5 और 13 हमारे पाइवोट बने थे, और लेवल 3 में 7, 12 एंड 19 हमारे पाइवोट बने थे। और इसलिए अगर हम ओवरऑल कॉन्कर अगर देखते हैं तो लेवल 1 में 9 थर्ड लोकेशन पे जाके सेव हो गया, इसलिए हमारा अरे इस तरीके से बना। फिर हम लेवल 2 पे अगर देखते हैं तो लेवल 2 में 5 और 13 हमारे पाइवोट थे, तो ये जाके काउंटर हो जाएगी, इसलिए हमारा अरे इस तरीके से दिखेगा। और लेवल 3 पे 7, 12 एंड 19 हमारे एलिमेंट्स थे, यानी पाइवोट थे, वो जाके काउंटर करेंगे, इसलिए फाइनली हमारा अरे इस तरीके से दिखेगा, गेटिंग इट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ एग्जैक्टली अवर quick sort works in divide and conquer page. And for assignment purpose, I have given one more problem to you. The problem is illustrate stepwise execution of quick sort on the following array. So whatever input I have provided to you, by using that particular input, you have to solve this particular problem. Your elements are 12, 15, 25, 2, 9, 10 and 4. So as far as this particular array is concerned, you have to go for level wise divide and conquer mechanism. So this was all about
stepwise execution or a stepwise illustration of PicsArt. Thank you.